السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں ایکسرسائز 17.5 کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ 9th سائنس میتھ کا ہم اختتام کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ میں نے کویشچن پہلے لکھ لیا ہے ٹائم بچانے کے لیے۔ ایک مربع بنانا ہے ہم نے جس کا رقبہ ایک ایسی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہوگا، جس کے متصلہ اضلاع بعد ترتیب یہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم پھر ایک بنا لیتے ہیں مستطیل جس کے یہ اضلاع ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ کو پتہ ہے، یہ ہمارے پاس بنی ہے مستطیل اور اس کے لیے مجھے 4.5 سینٹی میٹر چاہیے جی۔ یہ دیکھیں، تو میں نے یہاں پہ نیچے 4.5، یہ 0 ہے، یہ 4.5 سینٹی میٹر کی میں نے ایک لائن لگا لی ہے۔ اوکے، چلیں جی۔ تو اس کا ہم نام رکھ لیتے ہیں۔ نام میں نے رکھ لیا ہے اس کا اے اور بی۔ یہ اے اور بی ہے اور یہ 4.5 سینٹی میٹر لائن لگا دی میں نے۔ اچھا، اب ساتھ ہی چونکہ ہم نے بنانی ہے یہاں پہ مستطیل، تو آپ کو پتا ہے مستطیل ہو یا مربع ہو، اس کے جو ضلع ہیں وہ جو مستطیل ہے اس کے آمنے سامنے کے ضلع برابر ہوتے ہیں اور مربع کے چاروں ضلع برابر ہوتے ہیں، لیکن اینگل جو ہیں وہ 90 ڈگریز کے ہوتے ہیں۔ جو زاویہ ہوگا، چاروں زاویے مستطیل ہو یا مربع ہو، اس کے کون سے ہوتے ہیں؟ 90 ڈگریز کے۔ تو یہ دیکھیں، اس طرح میں نے یہ یہاں پہ 90 ڈگریز کا یہ بنا لیا ہے جی۔ اب چونکہ آمنے سامنے کے ضلع ہوتے ہیں، آپ کو پتا برابر، مستطیل بنا رہے ہیں، تو 2.2 سے ہم پرکار کھول لیں۔ یہ 2.2 سم آ گیا، یہاں رکھ کے 2.2 سم، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح میں یہاں بھی 2.2 سم پرکار کھولوں گا، اور یہاں میرے پاس چونکہ یہ 4.5 سم ہے جی، اس طرح میں یہاں رکھ کے اس کو 4.5 سم پہ کاٹ لوں گا۔ تو غور کریں، ان لائنوں کو ملانے سے میرے پاس بن جائے گی مستطیل، ٹھیک ہے، اے بی۔ اور یہاں ہم ابھی دیکھیں، اس پوائنٹ کو ملائیے گا، یہ بنا سی پوائنٹ، اس پوائنٹ کو ملائیے گا، یہ بنا ڈی پوائنٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اے بی سی ڈی میرے پاس یہاں پہ کیا ہوا؟ مستطیل بن گئی۔ اب چاہوں گا میں ساتھ عمل اس کے بھی لکھ لوں بھی ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو۔ عمل لکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کیا کیا ہے آپ کو پتا ہے، میں نے یہ کتا خط اے بی کتنا لیا جی؟ 4.5 سم اے بی لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اے کو میں نے کیا کیا؟ نقطہ اے پر 90 ڈگری کا زاویہ بنایا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اے ڈی ہے تو ہم نے 2.2 سم ہے نا، یہ 2.2 سم پرکار کھول کر اے کو مرکز مان کر قوس لگائی۔ ابھی جو قوس لگائی ہے میجرمنٹ اے ڈی قطع کیا، ٹھیک ہو گیا نا، اے ڈی بن گیا، آپ کو پتا ہے۔ اب ڈی کو مرکز مان کے ہم نے قوس لگائی تھی، بی کو مرکز مان کے قوس لگائی تھی، ہم یہاں پہ ڈی کو، اب ڈی اور ساتھ کیا تھا؟ بی، تو ڈی پہلے بی کا لیتا ہوں، بی
कॉमा डी को मरकज मान कर बा तरतीब, ठीक है ना, दो की बात आ गई ना, दो की बात और तीन की बात, तो क्या लिखते हैं, बा तरतीब। पहले बी को मरकज माना है तो ये खोली थी कितनी प्रकार हमने 2.2 और डी के लिए कितनी मरकज माना था तो कितनी खोली थी प्रकार हमने 4.5 सम। कौसें लगाई जिन्होंने एक दूसरे को नुक्ता सी पर कता किया, मुसल्लस ए बी सी बन गई। इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह मुसल्लस ए बी सी बन गई। तो ये हमने मुसल्लस बना, मुस्ततील सॉरी जी, यहाँ पे क्या लिखना है, मुस्ततील बन गई ना, तो ए बी सी डी बनी है, तो मुसल्लस नहीं, ऐसे में ऐसे, अब ये देखें ये काट रहा हूं ऐसे करके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुस्ततील, ठीक है ना, मुस्ततील ए बी सी डी बन गई, मुस्ततील बन गई। अब हमने क्या करना है, पढ़े, मुरब्बा बनाए जिसका रकबा ये हमारी है मुस्ततील, इसके बराबर होगा। फिर मुरब्बा के हमने अजला की पैमाइश भी करनी है, फिर रकबा भी इसका मालूम करना है, फिर मुआजना करना है मुस्ततील के रकबे के साथ, ठीक है, काफी काम है। अभी हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसका मुरब्बा बनाएंगे। उसका मेथड क्या है, तो अमल आप गौर कीजिएगा जरा, अमल क्या है इसका। अमल ये है कि आपने सी डी को सी की तरफ बढ़ाना है, ये आपने अमल यहां लिखना है कि सी डी को सी की तरफ बढ़ाया और बी सी को सी की तरफ बढ़ाया। अब ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, सी बी रदास की तो सी बी रदास की कौस लगाई सी एन, देखेंगे सी बी बराबर सी एन, ठीक है। ये मैं यहां थोड़ा सा एक डॉटेड बना लेता हूं, ये डॉटेड बना लिया मैंने। तो सी बी के बराबर में क्या करना है, सी एन यहां हम नाम रख लेते हैं, सी एन बनाया हमने लिया। तो अब हमने क्या करना है कि डी एन का वस्ती नुक्ता निकालना है, डी एन का अमूदी नासिफ। तो हाफ से ज्यादा प्रकार खोलें और इस तरह से हमने इसका अमूदी नासिफ एक बनाना है जी, डी एन का। अब एन पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि हमने डी एन का यहाँ पे एक अमूदी नासिफ बनाना है। तो मैं ब्रेड ले रहा हूं, तो गौर कीजिएगा ये मेरा अमूदी नासिफ है, ये अमूदी नासिफ आपको नजर आ रहा है जी, ठीक है। ये पॉइंट एक बना मेरे पास, इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पे ओ रखते हैं, ठीक है। वस्ती नुक्ता क्या लिया हमने, ओ लिया, डीएन का वस्ती नुक्ता ओ लिया। अब ओ को मरकज मानकर ओ डी रदास की हमने कौस लगाई, जिसने क्या किया, ये जो हमने एक निस्फ लगाया था ना, मतलब जो हमने इसकी तनसीफ की थी, तो इसको इसने काटना है निस्फ दायरे ने। जो हमने दायरा लगाया है, ये वाला निस्फ दायरा लगाया है, इसने गौर करें जो बी सी को मैंने आगे बढ़ाया था, वहां उसने जाके काटा है खास पॉइंट पे, और इसका नाम हम आर रख देते हैं, ठीक है।
तो इस दायरे ने बी सी में सी की तरफ बढ़ाए हुए को नुक्ता आर पे क्या कर दिया है, काट दिया है। तो बस यही हमारे पास सी आर जो है ये मतलूबा मुरब्बे का जिला है। तो सी आर जिला है, तो मैं अब सी आर के मुताबिक अपनी प्रकार खोलता हूं। ये देखें, ये सी आर के मुताबिक प्रकार खोली है। इसी तरह मैं यहां रख के काट लेता हूं, ठीक है। और इसी तरह ये जो पॉइंट बना है इसको मैं इधर रख के काट लेता हूं, और इसी तरह मैं आर को मरकज मान के इसको काट लेता हूं। इसे कहते हैं कि सी आर मुरब्बे का एक जिला है और सी आर पर मुरब्बा मुकम्मल किया। ये हम लिखते हैं अमल में कि सी आर पर मुरब्बा मुकम्मल किया मैंने। कैसे? कोसें लगा के। ये देखें, ये जो सी आर था इस पर मेरा मुरब्बा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया जी। मुरब्बा बना गया मेरे पास। तो पहले ये एंड पॉइंट था, ठीक है ना, ये एंड पॉइंट था, लेकिन ये जो पॉइंट बना है ये पॉइंट मेरे पास पी बना है, क्योंकि मैंने सी आर जो है वो सी पी के बराबर लिया है। और यहाँ पे क्यू बना देते हैं, तो आर सी पी क्यू हमारे पास एक मुरब्बा बन गया है। तो अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है जी हमने। इसमें लिखना है हमने कि मुरब्बा का एक जिले की लंबाई कितनी है, वो हमने निकालनी है। तो मुरब्बा का जिला बराबर कितना आया है, चेक करें जरा, मुरब्बे का जिला कितना आएगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये कि आपने इसको मेजरमेंट चेक कर सकते हैं, ऐसे रख के इसको ना, इसकी मेजरमेंट कर लें कि कितना आ रहा है। ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है जी, ये 3.1 मुरब्बे का जिला हमने नापा है, वो हमारे पास 3.14 तकरीबन बन रहा है जी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, निकालना है मुस्ततील का रकबा। ये कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। लंबाई जब चौड़ाई होती है तो लंबाई ज़रब चौड़ाई जब हम निकालेंगे तो ये इसकी निकलेगी जनाब टोटल 9.9, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। यह है मुस्ततील का रकबा। अब है मुरब्बे का रकबा, वो कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो 3.14 ज़रब 3.14, तो ये भी 9.9 स्क्वायर मुरबा मीटर आएगा जी, ठीक है। तो लिहाजा बराबर हो गया आपस में। तो मुस्ततील का रकबा किसके बराबर हो गया, मुरब्बे के रकबे के। ये एक चीज साबित हो गई कि अजला की पैमाइश हो गई है, ठीक है, रकबा मालूम हो गया है। इस रकबे का मुआजना मुस्ततील के रकबा से करें। तो अब मुआजना करना है हमने अगर, तो आप देख लें आपके सामने है, दोनों बराबर हैं भाई, ये मुआजना हो गया। तो यहाँ जो अमल लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा कि आप क्या करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे, मुस्ततील यहाँ तक बन गई हुई है मुकम्मल, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि डी सी में से सी को आगे बढ़ाया और बी सी में से सी को आगे बढ़ाया। अब लिखना है कि सी बी के बराबर सी एन कता किया। अब लिखना है डी एन का नासिब खींचा। फिर लिखना है नासिब नुक्ता ओ को मरकज मानकर निस्फ दायरा लगाया, जिसने बी सी में बढ़े हुए सी को नुक्ता आर पर काटा। अब सी आर मतलूबा मुरब्बा है और सी आर से मुरब्बा मुकम्मल किया। बस इस तरह से आपने ये अमल लिख लेना है। मैंने जो अभी रिकॉर्डेड है इसको रिवर्स कर लें और लिख लें, नोट कर लें। मैं चाह रहा हूँ मेरा टाइम बचे लिखने का। इस तरह से आपने सवाल नंबर 2 को सॉल्व किया है। सवाल नंबर 1 बिल्कुल इस तरह का है जी, इसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही आपने इसको निकालना। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें कहा गया कि मुदरजा वाला जो सवाल नंबर 2 था ना आपका, उसने पैमाइश से तस्दीक करी कि मुरब्बे का अहाता मुस्ततील के अहाते से कम है। अब हमने यहाँ अहाता निकालना है, अहाता मुरब्बे का और अहाता मुस्ततील का।
آپ کو پتا ہے مستطیل کا احاطہ اگر نکالنا ہو تو فارمولا کیا ہوتا ہے؟ 2 کو ضرب دیتے ہیں لمبائی جمع چوڑائی کے ساتھ، یہ فارمولا ہے۔ تو 2 انٹو لمبائی کتنی ہے جی؟ آپ کو پتا ہے یہاں پہ 4.5 سینٹی میٹر تھی اور چوڑائی 2.2 تھی، ایسی بات یہ ہے۔ جب اس کو آپ سالو کریں گے تو یہ 2 انٹو 4 2 6.5 2 7 آ رہا ہے، تو برابر کتنا آ جانا ہے؟ ضرب دے دیں، 12 7 14 13، تو 13.4 سینٹی میٹر ہمارے پاس اس کا احاطہ نکل آیا۔ اب لکھیں گے مربع کا احاطہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسے نکالتے ہیں؟ اس کو آپ نے ضلع کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ مربع کا ضلع ضرب 4، ضلع کی لمبائی ضرب 4 جی 4 ملٹیپلائی 3.14 آیا تھا نا اس کا، تو کیا اس کا آنسر آ جانا ہے؟ یہ آنا ہے 12.56 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو مربع کا احاطہ ہے وہ کتنا ہے؟ 12.56، اور یہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے کس سے؟ مستطیل کا احاطہ، وہ کتنا آیا ہے؟ 13.4 سینٹی میٹر۔ یہ ان کا آپس میں کیا ہو گیا؟ کمپیریزن احاطوں کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ چونکہ میں نے پہلا سوال کیوں نہیں کروایا آپ کو، دوسرا کیوں کروایا؟ کیونکہ دوسرے کا ہی سوال تیسرا بننا تھا، اس طرح آپ نے 3 سوال اس کے حل کر لیے ہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں جی کویشچن نمبر 4 پہ۔ کہا گیا ہے کہ مربع بنائیں جس کے رقبہ 2 مربعوں کے مجموعی رقبہ کے برابر ہو، جبکہ ان دونوں مربعوں کے اضلاع با ترتیب 3 سم 4 سم۔ 4 سم اور 3 سم کا ہم نے یہاں پہ 2 مربع بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیں اس کو بناتے ہیں۔ تو ابھی یہاں کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے ہم کتا خط لیں گے جی، عمل آپ نے ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے۔ آپ نے، میں کیا لکھوا رہا ہوں، ایک کتا خط اے بی 4 سم لیا، ٹھیک ہے؟ ایک کتا خط اے بی 4 سم لیا، اے بی کتا خط 4 سینٹی میٹر لیا۔ اچھا، اب چونکہ ہم نے مربع یہاں مکمل کرنا ہے تو وہ آپ کو پتا 90 ڈگریز ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو مربع کیسے مکمل کروں گا؟ اب میں ادھر 90 کا زاویہ بناؤں گا، تو یہاں میں 90 ڈگریز کا زاویہ بنانا ہے۔ یہ دیکھیں کہ 90 ڈگری کا زاویہ یہاں بن گیا۔ بڑی احتیاط سے لگانا ہوتا ہے آپ نے لائن کو، ٹھیک ہو گیا جی؟ 90 کا زاویہ بنا لیا آپ نے۔ جب 90 کا زاویہ اوپر بنا، اس کو نیچے بھی پھر کھینچ لیتے ہیں ہم اس طرح سے، یہ دیکھیں، اس کو نیچے بھی کھینچ لیں کیونکہ ہم نے اے بی سی ڈی مربع مکمل کرنا ہے۔ تو ہم لکھیں گے کہ اے بی سی ڈی مربع مکمل کیا۔ کیسے؟ ذرا دیکھیے گا، یہ 4 سم تھا نا، تو 4 سم یہاں بھی کاٹ لیں اور یہاں رکھ کے پرکار کو تو 4 سم یہاں بھی کہیں کاٹ لیں، اسی طرح یہاں رکھ کے پرکار کو بی کے اوپر تو 4 سم یہاں بھی کاٹ لیں۔ مربع مکمل کر دیا نا میں نے، دیکھیں اس طرح اے بی پر مربع مکمل کیا۔ تو اے بی سی ڈی، ٹھیک ہے؟ تو کیا لکھیں گے کہ
पहले ए किता खात ए बी 4 सम लिया, ए बी पर ए बी सी डी मुरबा मुकम्मल किया। मुरबा जो ए बी सी डी है उसमें जिला डी ए, ठीक है ना, ये जो डी ए जिला है इसमें ए की तरफ बढ़ाया, ये ए की तरफ बढ़ाया 90 का हमने जाविया। तो अब ए पी, ये देखें जरा अपने सवाल के मुताबिक जो लिखा हुआ है वो 3 सम है जी। आप सवाल पढ़ लें कि अजला बा तरतीब 3 सम 4 सम, 4 सम का मरबा बन गया है, अब 3 सम का मरबा बनाने लगे हैं। तो ये ए कहाँ काटा इसने, ए के बाद आप पी बना लें, तो ए पी कितना 3 सम। तो अब 3 सम का जो मुरब्बा है वो हम यहां मुकम्मल करेंगे ए पी पर, ठीक है ना, ए पी पर अब 3 सम का मुरब्बा, लेकिन इधर नहीं मुकम्मल करना, वो इधर मुकम्मल करना है। ये देखें इधर ऐसे लाइन लगाएं, ठीक है, और इसको मरकज मान के ऐसे लाइन लगाएं, लाइनें लग गई हैं। तो अब आप डेफिनेटली क्या करेंगे, ये ए बी को आगे बढ़ाएं, ए बी में से ए साइड को आगे बढ़ा लें। ये देखें जब आगे बढ़ाएंगे तो ये जाके इसको इधर काट देगा, इधर काटेगा, नुक्ता बन गया है, आर नुक्ता बना, आर को मरकज माना और 3 सम प्रकार खुली हुई ऐसे काटा। अब क्या करेंगे, ये आर है हमारे पास पॉइंट, ये क्यू है, तो पी ए आर क्यू, ठीक है ना। ये देखें इस तरह से मैंने 2 मुरब्बे मुकम्मल कर लिए और बना लिए जी। यहां तक कोई मुश्किल बात कोई नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि ए पी पर मुरब्बा मुकम्मल कर लिया हमने, ठीक हो गया। तो ये 3 सम था इधर से और ये 4 सम था। अब नुक्ता पी को बी से मिलाना है हमने, नुक्ता पी को हमने किससे मिलाना है, बी से। नुक्ता पी ये नजर आ रहा है, नुक्ता बी हमें ये नजर आ रहा है, इनको आपस में जरा मिला दें, इस तरह से मिल गए जी। नुक्ता पी को बी से मिला दिया है। अब देखें ए बी पी हमारे पास एक कायमा जाए मसलस बन गई है, जिसका एक जिला 4 सम है और एक जिला दूसरा कौन सा उसका 3 सम है, ठीक है, और वितर पी बी है ये। तो वितर पी बी पर हमने क्या करना है, मुरब्बा मुकम्मल कर देना है, ठीक है। अब कैसे मुकम्मल करेंगे, आपको पता है यहाँ 90 डिग्रीज का एंगल बनना है जी। बनाने लगाऊं, पी बी पर मुरब्बा मुकम्मल करना है। मुरब्बा जब मुकम्मल करते हैं तो उसके लिए हमें एक एंगल क्या चाहिए होता है, 90 डिग्री का। ये देखें जरा, इस तरह मैं इस पर 90 डिग्री का जाविया आपके सामने बनाने लगा। इस तरह से ये मैंने प्रकार की मदद से 90 डिग्री का जाविया, ये देखें इसके ऊपर 90 डिग्री इस तरह से ये गिर रहा है, तो ये मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है 90 डिग्री, ठीक है। अब कुछ मुश्किल नहीं है भाई, आपको पता है कि ये हमारे पास जो भीतर आया है इसकी जो लेंथ है ना उसके मुताबिक हमने खोल लेनी है अपनी प्रकार, ठीक है। और हमने इसको इधर से रख के इधर काटना है, नुक्ता जो बनेगा उसको इधर से रख के हमने इधर काटना है, नुक्ता जो बनेगा उसको इधर से रख के हमने इधर काट देना है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास एक अलग से मुरब्बा तैयार हो गया। लाइनों को मिला दें। अब ये अमल लिखना आप देख लें कि भी अमल आप लिख सकते हैं कि नहीं, जो कर रहे हैं वो आप लिखते जाएं, सिंपल, ठीक हो गया। तो ये एक मुरब्बा मेरा तैयार हुआ, लिखेंगे वितर पी बी पे मुरब्बा मुकम्मल किया, तो पी बी एस टी, देखें पी बी और ये हमारे पास एस है और ये हमारे पास टी है, तो पी बी एस टी हमारे पास मतलूबा मुरब्बा है जिसका रकबा दिए हुए दोनों मुरब्बों के मजमुए के बराबर होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास ये पी बी है ना, पी बी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर जमा ए पी स्केयर, यानी कि वितर स्केयर इज इक्वल टू अमूद स्केयर जमा कायदा स्केयर जमा अमूद स्केयर। क्यों कि मसला जो कायदा में बनी हुई है,
इस तरह से आपने ये सवाल नंबर 4 अपना मुकम्मल किया, जिसमें आपने मुरब्बे को यहाँ पे अलग से बनाया 2 मुरब्बों के साथ। अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है जी अगला, इससे 5वां और 6ठा, ये दोनों बिल्कुल एक तरह के सवाल हैं। इनमें से कोई एक हम हल कर सकते हैं। दोनों एक तरह के सवाल हैं, इसमें कोई इतना फर्क नहीं है जी। तो चलें फिर ऐसे करते हैं, 5वां नहीं 6ठा हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। कहा एक मसलस बनाएं जिसका कायदा 5 सेंटीमीटर और दूसरे अजला 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। एक मरबा बनाएं जिसकी रकबा दी गई मसलस के बराबर हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको पूरा अमल करके दिखाने लगा हूँ, तो आप साथ साथ यहाँ नोट भी करते जाएं। सबसे हमने बताना है कि ए बी सी एक मसलस जो मालूम है हमें, जिसमें हमारे पास क्या है, ए सी, ए बी और बी सी। तो दोनों चूंकि तीनों जिले हैं देखें इसमें, तो मैं बड़े आराम से मसलस बना सकता हूँ। कैसे, कितना खाता आप लेना है, 5 सेंटीमीटर का। देखें ये 5 सेंटीमीटर का मैंने एक यहाँ पे कितना खत ले लिया है। ठीक हो गया जी, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। नाम इसका आप रखें यहाँ पे जो कि मसलस बनाई है, तो बी सी, 5 सेंटीमीटर जो है एक्चुअली बी सी है एक्चुअली, तो मैंने यहाँ बी और सी लिया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपको पता है हमने ए बी करना है और ए सी है, तो ए बी और ए सी, तो बी पर नोक रख लूंगा और जो मेरे पास मेजरमेंट चेक करें, देखिए यह ए बी वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर पर कार्ड खोल लें, ए बी को मरकज मान लें और एक कौस लगा लें। फिर सी, ए सी कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी नीचे 5 ही था जी, तो 5 सेंटीमीटर पर कार्ड खोल लें। और ए सी है, तो ए तो मिला नहीं, तो सी पे पॉइंट रख के पहले वाले को काट लें। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक मुसल्लस बन गई है। और ये मुसल्लस हमें रिक्वायर्ड थी सवाल को मजीद आगे हल करने के लिए। ये मुसल्लस तैयार हो गई है, देखें जी। तीनों इसमें अजला थे, कोई एंगल नहीं था, तो उसी मुनासबत से मैंने यहाँ तीनों अजला बना लिए हैं। ठीक हो गया, ये ऊपर ए आ गया, ए बी सी, ये क्या है, एक मुसल्लस। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मुसल्लस तो बन गई। अब हमने ये करना है कि हमने बी सी के मतवाजी एक लाइन लेनी है जो कि एम एन होगी, जो नुक्ता ए में से गुजरेगी। ठीक है, इस नुक्ते में से गुजरेगी। और आपको पता है हमारे पास यहाँ जाविये जो होते हैं मतबादला, उन मतबादला जावियों की बुनियाद पे यहाँ मैं इसके मतवाजी बनाऊंगा। तो ये मैंने यहाँ मतबादला जाविये लेने हैं। तो यहाँ देखें, जो एंगल इधर बनेगा वही एंगल हमारा इधर बनना है। ठीक है, तो आए इधर एंगल बना लेते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसको मैंने सेंटर पॉइंट लिया और इस तरह मैंने रख के तो एक इस तरह एक कॉस लगाई। ठीक है, इसी तरह मैंने अब क्या करना है, इधर रख के पॉइंट को तो मैंने इधर एक कॉस लगानी। ठीक हो गया जी। अब जाविये को नापना है। कैसे नापेंगे, इस पे रख के नोक, ठीक है ना, इस पे नोक रखें, नजर आ रहा है आपको, इस पे नोक रखें और जाविये को नापें। ये है जाविया इतना मेरे पास, ये इतना जाविया है। इसी तरह अब आप इस एंगल पर रख के तो इसको यहां से नाप लें, ये नाप लिया मैंने। अब जब उसको आप मिलाएंगे तो वो हो जाएगा मतवाजी बी सी के। देखिए मैं मिलाने लगा हूं इसको, तो ये मैंने मिला दिया है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, मतवाजी। ठीक है, तो ये मतवाजी आया है बी सी के। इसका नाम क्या रखेंगे आप, एम एन। ठीक है ना, तो ये एम है और एन है, तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे बी सी के मतवाजी एम एन खींचा, जो नुक्ता ए में से गुजरता है। ठीक है, आगे है कि बी सी का अमूदी नासिब बनाना है आपने। अब बी सी है ना, इसका हमने क्या खींचना है, अमूदी नासिफ। तो आए खींचते हैं। इस तरह मैंने इसका अमूदी नासिब बनाने के लिए, आपको पता है ये मैंने सारा समझाया हुआ है आपको,
इस तरह से हम बी सी का एक अमूदी नासिफ खींच लेंगे। ये अमूदी नासिफ है जी इसका, और इस पॉइंट पे इसने से कट किया। इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? अब इसका नाम ना रखें, इसको जरा बढ़ा लें ऊपर, हमें इसको हमने ऊपर की तरफ बढ़ाना है जी। ये खात ही समझ रहे आप इसको नाम दे, डब्ल्यू को नाम दे दें इसको, ठीक है ना, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या है? ये एक नासिफ है किसका? बी सी का, जो एम एन को जाके नुक्ता ई पे काटता है। ये बात समझनी है, ये नुक्ता ई बना हमारे पास, एम एन को जाके नुक्ता ई पे काट रहा है ये। इस तरह क्या हुई? ई ओ सी डी, देखें जरा, ई ओ, ये ओ पॉइंट रख लें इसका जी, ई ओ सी, और अब मेरे पास अभी डी नहीं बना। जितना मेरे पास ओ सी है उतना मैं ई डी काट लेता हूं। ये देखें जरा, ओ सी किरदास खोल के नुक्ता ई को मरकज माना और एम एन को नुक्ता डी पर कता किया और डी को सी से मिलाया। ठीक है जी। इस तरह एक मुस्ततील बन गई ई ओ सी डी। ये क्या बन गई है? मुस्ततील। ठीक हो गया जी। तो यहां अभी तक मुस्ततील बनी है, लेकिन हमने अब बनाना है मुरब्बा। सवाल पढ़े ना आप, एक मुसलस बनाए जिसका कायदा 5, दूसरे अजला 5 और 6 सम हो। एक मुरब्बा बनाए जिसका रकबा दी की मुसलस के रकबे के बराबर हो। तो ये मुरब्बा बनाने से पहले ये मुस्ततील बनानी क्या है? जरूरी है। अब देखिए मुस्ततील ई ओ सी डी, ई ओ सी डी आपको नजर आ रही है। इसके जरा डी सी को बढ़ाएं सी की तरफ। ये थोड़ा सा बढ़ाया भी है मैंने, ऑलरेडी बढ़ा दिया है। और आपने अब क्या करना है कि ओ सी जो है, थोड़ा और बढ़ा लेता हूं, तो आपने यहां पे जो ओ सी है, ओ सी के मुताबिक आपने सी के नाम रख रहा हूं जिसका सी के। ये यहां पर गौर करें, इधर नहीं जाना हमने, सॉरी ये थोड़ी मिसिंग हुई है। ये डी सी को आगे बढ़ाएं, ये डी सी को आगे बढ़ाया मैंने। तो जो है ना मेरे पास ओ सी, ये देखिए जो पहले हम करके आए हैं ना वही उसी तरह करना है। ओ सी है, तो अब हमने क्या करना है, यहां पे सी के काट लेना है इस तरह। ये है सी के। अब ये सी के जब आ गया तो डी के का अब हमने क्या करना है? वस्ती नुक्ता मालूम करना है, जैसे पहले करके आए हैं भाई, उस तरह से। तो थोड़ा मैं प्रकाश ज्यादा खोलता हूं ताकि दूर तक जाए इसका वस्ती नुक्ता। ये देखें जरा, यानी कि दूर तक कोसें लगे। वस्ती नुक्ता तो वही निकलना है जितनी मर्जी आप प्रकार खोलें, लेकिन ज्यादा खोलेंगे तो कौसें दूर दूर लगती। वस्ती नुक्ता, ठीक है, ये मालूम करना है। और ये मालूम हो गया है हमारे पास। देखें ये है जी वस्ती नुक्ता किसका? डी के का। जब डी के का वस्ती नुक्ता एफ मालूम कर लिया आपने, ये एफ नुक्ता हमने निकाल लिया है जब, तो अब क्या करेंगे? आपको याद है निस्फ दायरा बनाना है हमने, है ना। अब निस्फ दायरा कैसे बनाएंगे? एफ डी या एफ के प्रकार खोली और हमने निस्फ दायरा बनाया। यहां देखिए थोड़ी मिसिंग हुई है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साथ जाकर टच होनी चाहिए। क्योंकि मार्कर है इसलिए कुछ पॉइंट्स जो है वो थोड़ा फर्क आ जाता है। तो ये मेरे पास सर्कल लग गया है जी हाफ। अब आपको पता है कि इसने काटना है इस सर्कल ने, तो ओ सी को सी की तरफ जब बढ़ाएंगे, हम ओ सी को आगे बढ़ाएंगे, देखो तो यहां जाके ये काटेगा ओ सी को। इस नुक्ते का नाम आर है।
इसका नाम आर रख लें। ये नुक्ता जो बना इधर ये वाला, तो सी आर जो है ना असल में बस ये मतलूबा मुरब्बे का हमारे जिला मिल गया है। ठीक है जी, सी आर, ये सी आर हमें इसका जिला मिल गया। तो अगर ये सी आर जिला है तो फिर यहाँ से भी इसे काटेंगे, फिर उसके बाद इसको यहाँ रखेंगे, फिर इसको यहाँ काटेंगे, फिर इस मुरब्बा है ना, तो आपको मुरब्बा बनाना सिखाया हुआ है, इस तरह काटेंगे। तो गौर करें ज़रा, अब मैं इनको मिला देता हूँ और मैं अब इसको ब्लैक से मिलाता हूँ जी, ये गौर कीजिएगा। तो जो मैं नुक्ते, ये नुक्ता एक नया बना है मेरा, तो आर के बाद इसका नाम क्यू रख लेते हैं। तो ये आर क्यू इधर मिला, फिर क्यू के इधर मिला, फिर के सी और सी आर। ये मेरे पास जो यहाँ मुरब्बा बना है ये वो मतलूबा मुरब्बा है जिसका रकबा इस मुसल्लस के बराबर होगा जी। तो अब ये सवाल जो मैंने आपको करवाया है इसको आप जरा गौर से देखें, और जो इससे पिछला सवाल है 5वां वो बिल्कुल इस तरह से ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, तो आप उसको भी हल कर लें। इस तरह आपका जो मैथ था 9th का साइंस का, और 17 पॉइंट जो लास्ट आपकी थी एक्सरसाइज 17.5 वो मुकम्मल हुई। विश यू गुड लक। अब मेहनत करें और बड़े अच्छे मार्क्स इस मैथ में गेट करें।